All right, we left the last session at this particular point, rules and routines. ये हमने कर लिया था that we have to be sure to define what you expect, our expectation. Our expectation, आज हमारा ड्राइंग का पेपर है या हमने एक ओपन आर्ट कंपटीशन रख रखा है. So what we expect from the students, अपनी एज ग्रुप के हिसाब से, एज appropriateness के हिसाब से, everybody must come with a paper, different colors, whether it is crayons, whether it is watercolor, where it is this is canvas or oil color, whatsoever the medium you are to use. We expect every student to be with their particular material that they will be utilizing in the competition. And then you have to define. चलिए आगे चलते हैं इसमें. So procedures that are practiced on daily basis, they are rules, they are routines. And routines are the groundwork for a well orchestrated classroom. Orchestra आपने देखा होगा, the conductor of the orchestra just एक डंडी लेके इधर हिलाएगा उधर हिलाएगा without any expressions on the face. Each one of the musician or instrument player, they know what type of action he will conduct when it is my chance to play my instrument. And this is the same thing that should happen in the class. So what the students do automatically is habit. वो जनरली आ जाता है, बस से उतरते के साथ ही अंजलि मैडम को देखा तो भी गुड मॉर्निंग मैम, डॉक्टर साहब को देखा तो गुड मॉर्निंग डॉक्टर सर, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर. इवन मैंने देखा है जो कल्चर्ड होम्स होते हैं, देयर बैकग्राउंड इज सो मच स्ट्रॉन्ग दैट व्हेन दे कम टू द स्कूल तो ड्राइवर को भी बोलते हैं गुड मॉर्निंग भैया, कंडक्टर को भी बोलते हैं गुड मॉर्निंग भैया. ग्रुप डी स्टाफ को कहीं देखेंगे, आया को कहीं देखेंगे गुड मॉर्निंग दीदी, गुड मॉर्निंग आंटी. बट दीज आर द हैबिट्स विच वी, देखिए हमारे टाइम में तो नहीं होता था, बिकॉज instilling the cultural values and tradition in the child is the sole and prime responsibility of the parents. आप बता दीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं. जैसे संस्कार हमारे घर में हमको मिलते हैं, वही हमारा कल्चर है, वही हमारे ट्रेडिशंस, वही हमारे प्रोसीजर्स और वही हमारे रूटीन्स, उसी तरीके की हैबिट हो जाती है. But if they are not done automatically, then it is a problem. कि बोलना पड़े आपको, बेटा अंकल से नमस्ते करो, नहीं बोलना चाहिए. Because if it is established routine, then automatically the child will follow. So there are three things that has to be mentioned: morning routines, after school routines, and at home routines. आफ्टर स्कूल के बाद मॉर्निंग और होम को छोड़ के, स्कूल और घर को छोड़ के कहीं पे भी जाएंगे, व्हाट आर दोस पर्टिकुलर रूटीन्स. हैबिट्स हो जाती हैं. खाना वेस्ट नहीं करना है. किसी कमरे से बाहर जा रहे हो तो वहां पे स्विच ऑफ कर दीजिए, लाइट, फैंस. दीज आर द हैबिट्स, ऑटोमेटिकली दे आर डेवलप्ड. नेक्स्ट वी मूव ऑन इज हाउ एंड वेयर टू स्टार्ट. इसी अब आप ऐसा करिए कि एक लिस्ट बना लीजिए अपने बच्चों के साथ बैठ के एंड ब्रेनस्टॉर्म करिए कि पहले तो ये बताइए क्या क्या हमें टास्क अचीव करने हैं. सबसे पहले टीचर्स गुड मॉर्निंग करने के बाद अपना बंडल साइड में रखते हैं, गुड मॉर्निंग, एक अच्छी सी स्माइल बच्चों को दी तो बच्चों को लगा कि मैडम का मूड अच्छा है. अब वो इतना अच्छा भी ना लगे कि मैडम आज पढ़ने का मूड नहीं है, आज गेम्स करवा दीजिए. उतना अच्छा भी तो मूड ठीक नहीं है ना. और जनरली हो जाता है, अगर बच्चे देखते हैं कि मैडम आज बहुत खुश खुश आई हैं तो ऐसा भी ले लेते हैं. देन आफ्टर यू develop the final list of rules as a group, then which ones do you think, do your students think are important? अगर बच्चे किसी रूल से डिसएग्री करते हैं, then ask them कि ऐसा क्यों, why do you disagree with this particular rule, कि ये आपको अच्छा क्यों नहीं लगा. और फिर
क्लास में ही दूसरे लोग भी होंगे, when they will be saying, who will be saying कि नहीं मैडम ये रूल अच्छा है, तो ठीक है आप बताइए कि why this rule is good. Next, when we go on for, while it is good to include students in rule making process, लेकिन एक चीज, the most important thing which you will be must also remember, and the students must also be reminded every time. It is you who will have the final say. This is not a democracy. Must keep in your mind, this is not a democracy. This is my classroom. मैं कोई हिटलेरियन रूल नहीं चलाने वाली यहाँ पर, but it will be for the benefit of you people, our learning environment, and myself also. कि जी मैं अच्छे से मूड से पढ़ाना चाहती हूँ, तो you have to follow these things. No disturbance in the class. हाथ खड़ा करने के लिए आंसर के लिए प्रोसीजर है, तो यू हैव टू फॉलो दैट. क्लासरूम में अगर आपने कोई, फॉर एग्जांपल छोटे बच्चों को बहुत एक बड़ी उनकी प्रिय आदत है, वो क्लास में फट से हाथ उठाएंगे, मैडम पेंसिल शार्पन करनी है, एंड होल डे दे विल कीप ऑन डूइंग, एवरी पीरियड. सुबह इतनी बड़ी पेंसिल लाते हैं, शाम को जाने के टाइम में दे विल बी लेफ्ट ओनली विद दिस मच. एंड द पेरेंट्स ड्यूरिंग द पेरेंट टीचर्स मीटिंग दे विल कम कि मैडम ये करते क्या है, इनका कोई दूसरा बच्चा ले लेता है क्या? ऐसा होता कहीं नहीं है, बट दिस may come to their mind. So then when you explain those rules and collaborate on the rules, collaborate with the students, why this rule, what will be the benefits, and what will be your response. अगर आप ऐसा करेंगे तो I will be happy, you will be happy, so both will be happy. If you don't follow the rule, I will not be happy, I will also make you unhappy, both of us will be unhappy, and the net result will be zero. So what do you want? Both of us to be happy or both of us to be unhappy? Kids will always go for the happier things. They will accept your rulings. Whatsoever madam says, that is final. Next is विदिटनेस. अब देखिए हाउ एंड वेयर शुरू करने से पहले हमको एक चीज दिमाग में जरूर रखनी चाहिए, विदिटनेस. ये विदिटनेस जो है ये बड़ा गुरु मंत्र है. विदिटनेस is actually refers to a teacher's awareness of what is going on in the classroom every time. मैंने बताया था पिछले भी सेशन में कि when it is the fourth period nearing towards its end, you will rather experience some flavors in the air of the room, because some of the naughty child might have opened the lunch box. Lunch box खोलते के साथ ही वो स्मेल आपको पहुंच जाएगी, which means the naughty boy has started taking his meal. You must be aware of. देखिए ऐसा करते हैं कि जब हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, we write with the back. हमारी बैक कभी भी बच्चों की तरफ नहीं होनी चाहिए. हमारी बैक हुई बच्चों की तरफ, and they will start taking advantage of that. So vividness refers to a teacher's awareness. So what is happening around in the room? Which means when discipline problem occurs, the teacher consistently takes action to surprise or suppress the misbehavior of exactly those students who instigate the problem. देखिए इसमें मैंने ये लिखा है, those who students who instigated the problem. Those who are creating the problem is not instigating the problem. दोनों में फर्क है. एक वो बच्चा जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, एक दूसरा बच्चा जो उसको इंस्टिगेट कर रहा है इस प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए. एंड व्हेन दिस two discipline problems arise एक साथ concurrently, then you must be able to, the teacher must be able to recognize with the priority which one should be dealt with the first one. On priority basis, which must I should take care. देनी तो उनको दोनों ही है, but which should be taken first? This should be taken into the consideration when we say vividness. The teacher decisively handles instances of off-task behavior. The behavior before the behavior either gets out of hand or they are modeled by others. आपने एक बच्चे का मिसबिहेवियर एक्सेप्ट कर लिया,
and you just say कि छोटी मोटी चीज है, let it go, let it go. जहां आपने उसको let it go कहा, then certainly it will be copied by somebody else in the classroom, जो देख रहा है कि मैडम ने इस लड़के का ये बिहेवियर ओवर रूल कर दिया. ओवर रूल इन द सेंस कि उसको नोटिस ही नहीं करने की कोशिश करी. When he says never noticed, then certainly it comes back to same mentality कि अगर मैडम ने उसको ध्यान नहीं दिया तो वो मुझे भी ध्यान नहीं देंगे. Is that clear to everybody now? Up to this point, it is very much clear. Then we go on to the next one. When handling misbehavior, make sure all students learn what is unacceptable about their behavior. Shouting is unacceptable. Getting angry or stressed, इससे misbehavior जो है वो reduce नहीं होगा. The misbehavior will never be reduced if you try to ignore this thing. Secondly, getting angry will not reduce further misbehavior. आपने गुस्सा किया, एक तो उधर से misbehavior, दूसरा आपकी तरफ से गुस्सा. Both the things, they will combine to make very beautiful mixture of explosion. वहां misbehavior बढ़ता चला जाएगा, यहाँ आपका anger बढ़ता चला जाएगा, and ultimately there will be total chaos, which means you have to deal with the misbehavior without disrupting the learning activity. जैसा कि हम लोग एग्जाम्स में करते हैं, we keep on moving around, but without disturbing their writing examination. Proximity and body language, इसमें ये चार चीजें हैं. Eye contact, whenever you are watching a student, किसी भी एक बच्चे को अगर आप 2 से 2.5 मिनट गौर से देखें घूर के, तो ऑटोमेटिकली ही विल बी फीलिंग ऑकवर्ड. अगर आप एक भीड़ में बैठे हो और अनजान आदमी कहीं अलग कोने में खड़ा हुआ आपके ऊपर नजर गड़ा के देखना शुरू कर दे, you will be feeling very awkward कि somebody is watching me unexpectedly. So they will also expect the same thing. Second thing is your facial expression. Your facial expressions will give them an idea of what exactly is your mood. Whether you are angry, whether you are polite, whether you are happy, whatsoever the facial expressions are. Then certainly gestures. When you are coolly teaching, you will totally be agreeing with me that yes, you will say, yes, beta, you answer. Yes, you answer. Okay, you, what is your response? And very smilingly. But when you are angry, you shut up. This is not your chance. And so on and so forth. Physical proximity to the student is also a must, which means you can communicate whether you are in calm control of the class and that you mean to be taken seriously. I'm smiling, that doesn't mean that you will start keeping on doing any nonsense in the class. Proximity has to be there, but roam around in the classroom amongst the student, watching their work, watching whatsoever they are doing, but do not turn your back to the class. आपने पीठ क्लास की तरफ करी और वहां पे दो बच्चों ने सीट चेंज कर ली, दो बच्चों के बीच में कॉमोशन हो गया. Any type of disruption may happen. You see, study of off-task behavior. 99% of the off-task behavior comes into 4 forms. Number 1 is talking out of turn. आपने एक बच्चे से डिस्कशन शुरू किया है कुछ
बात पूछी है एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द आंसर डिस्कशन के थ्रू. दूसरे कोने में खुसर पुसर शुरू हो जाएगी, विम्परिंग, whispering, everything will start. Second thing is clowning. Third thing is daydreaming. And fourth is moving about without permission. वो move भी कर जाएगा, and if you notice and then points it out, he will simply say, sir, I am going to take pencil. Sir, my copy is with him. And any other thing which is not on task. So it reveals antisocial, and antisocial means socially unacceptable और डेंजरस बिहेवियर. जो भी टाइम उन्होंने क्लास के अंदर स्पेंड करना है उसका छोटा सा फ्रैक्शन होगा वो, बट दैट विल डिसरप्ट whole of you, that can cause you harm in such a way that it will cause whole day to be spoiled. You will go to the next class with very bad sort of anger or temper. You will not be very much happy to talk to those kids. Simply saying copy निकालो and start writing, आपका टोन बदल जाएगा, आपका फेशियल एक्सप्रेशंस बदल जाएंगे. So that should not happen. Move on. To be clear on the consequences. So देखिए, मैंने आपको बताया था पहले भी कि consequences के बारे में मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं. Why? Because you know कि जब भी आपका कोई बच्चा कोई आपकी क्लास के अंदर पढ़ाने के टाइम में डिसरप्शन करता है for any reason whatsoever except teaching or learning process, it will be off task. और वो ऑफ टास्क बिहेवियर आपको किसी भी तरीके से पसंद नहीं है. देखिए, जब भी हम वेबिनार लेते हैं, वर्कशॉप करते हैं, फिजिकली वर्कशॉप के लिए भी जाता हूं, सो आई एक्सपेक्ट all the teachers to be ready with their pen and pencil. जो आपके दिमाग में doubts आए, you keep on writing then and there, but don't raise your problems in between. मैं problems की बात कर रहा हूँ, discussion की बात नहीं कर रहा हूँ. If you say something, then certainly there might be which is not, तो वो हाथ खड़ा कर देगा. This is the procedure. कि हाँ बेटा क्या हो गया, कि मैडम वो सेंटेंस एक बार फिर बोल दीजिए. That's all. छोटे मोटे disruptions हैं, but I have designed rather a 7-step consequence. एक बार, दो बार, चार बार में बच्चे को हमने पनिश नहीं करना है. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने कोई चीज, अब डस्टर है, वहां से उठा के उसने अपने डेस्क के ऊपर एक कील लगी थी, कील को ठोक के वहीं पे रख दिया, विच मीन्स यू हैव गॉन ऑफ टास्क. जो प्रोसीजर था कि आपने करना है कि नहीं करना, दैट इज डिफरेंट. करने के बाद उसको आपने फिर दोबारा से वापस वहीं पे रखना था. फिक्स व्हाट यू ब्रोक. जो आपने बिहेवियर था वो एक्सपेक्टेड नहीं था, दैट्स व्हाई यू हैव टू फिक्स इट अप. इसमें सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस तो मैं जनरल वार्निंग, जब भी मैं बताऊंगा आपको उसमें एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा. लेकिन ऐसा है कि जब भी आप किसी बच्चे को रोकेंगे, it is not always that all the students will accept your ruling by heart. थोड़ा बहुत उसमें विद्रोह होगा. There may be a little bit infarction. For example, violence versus speaking out of turn. एक दूसरे को मार देना, धक्का दे देना, पुश कर देना, सीट से नीचे गिरा देना, and speak it out of turn. दोनों के दोनों ऑफ टास्क बिहेवियर है और दोनों के लिए कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस दोनों के एक से नहीं हो सकते. सो दैट consequences you have to decide what kind or up to what level he has conducted off task or misbehaved, and up to what extent the consequence should be justified. The vast majority of the behavior problem is the failure of the student to follow procedures. तो हमने देखा था पहले भी, मैंने बोला है, प्रोसीजर को प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एंड जहां तक वो ठीक कर सके, up to that extent praise. Yes, up to this point this is good, but now you refine your skill a little bit more, बस थोड़ा सा और.
So effective teachers जो है, they manage their classroom with procedures and routines, and ineffective teachers, they discipline their classroom with threats and punishment. कल अगर होमवर्क नहीं करके लाए तो मैं प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगी. दिस इज अ वेरी स्मॉल काइंड ऑफ ऑफेंस, और इसको आप अपने सख्त रवैये से निपट सकते हैं. कैसे, वो अभी कॉन्सिक्वेंसेस पे आते हैं, हम तो करेंगे. ये मैं आपको एक चीज बता चुका हूं अभी कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स एंड मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स दे थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर किड्स. जनरली दे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव क्या? लंच का पीरियड मारा जाना, लाइब्रेरी पीरियड में आप बैठ के मेरे साथ होमवर्क करें. दोज कॉन्सिक्वेंसेस आर गुड and they are negative also, but they are not bad consequences. They are consequences for rectification of the kids. सुधारना है तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी. वो जब हम करेंगे कि reinforce the positive encouragement, the positive consequences, reinforce करिए उनको. और जहां negative consequences है, they will change your child's behavior. लेकिन अगर कंसिस्टेंटली यूज करेंगे तब. हर बार आपको देखना है कि जब आप घर में खाना खाते हैं तो अपनी झूठी प्लेट किचन में वॉश बेसिन में अपने आप रखनी है. ब्रेकफास्ट करना है तो बैठ के करना है. अगर बैठ के नहीं करना है तो आपको खाना नहीं मिलेगा. देर हो गई है तो आप थोड़ा जल्दी उठिए. ईच एंड एवरीथिंग शुड बी रीइंफोर्स्ड पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस के साथ. Every choice you make will lead to either positive or negative consequences. जैसे आप अगर काम पे जाते हैं तो आपको महीने के बाद एक सैलरी का चेक मिलेगा, and you will be happy कि whole month I have slogged and now that is the reward of my hard work. But if you attach your hard work with your promotion, कि मैं 6 महीने से लगातार काम कर रही हूं, प्रमोशन नहीं हुआ मेरा, that is something not expected. So these consequences should be taught in the lower primary, pre-primary, middle classes consistently. बल्कि मैं तो कहता हूं कि आपके 48 पीरियड्स एक वीक में होते हैं. एक पीरियड आप अगर रूल्स रूटीन्स के लिए टेंडर कर दे, नहीं हो तो मॉर्निंग असेंबली में शुरू करवा दीजिए. All right, the first thing we will be teaching is how to move in a line. आप लोग यहां से जाएंगे, कैसे जाना है वो प्रोसीजर सेट कर दीजिए. All class teachers will be around in the ground and they will keep on watching their own classes, finding out the people who are not following the right procedure. क्लास में जाने के बाद and they will very politely, अबे you were dragging the feet, बेटा ऐसे अच्छी आदत नहीं है. अक्षय you were pushing, that is not. तो इस तरीके के आपको रेक्टिफिकेशन टाइम टू टाइम करने पड़ेंगे. अब पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बीच में मेरे को डेफिनेशन के हिसाब से आप लोगों को इसमें डिफरेंस बताने की जरूरत नहीं समझता मैं, बिकॉज दे विल पॉजिटिव रीइंफोर्सेस मींस दोज रीइंफोर्समेंट्स व्हिच इंस्टिल द पॉजिटिव बिहेवियर इन द किड. रिपीटेडली आप उसकी शाबाशी करेंगे, ही विल डू द सेम. अगर नेगेटिव बिहेवियर है, उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस करेंगे, देन ओनली इट विल बी यूजफुल. अदरवाइज अगेन इट विल बी स्पॉइलिंग द किड. नेक्स्ट वन is while it is important to give your child positive reinforcement for behaving in a particular way, which means that is liked by you, but there are certain times when you will have to use negative consequences. जैसे छोटा छोटा टाइम आउट दे दिया, छोटी सी प्रिविलेज आपने अगर उसकी छीन ली. जबकि अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप यूज करें इन द सेम क्लास बट नॉट विद द सेम चाइल्ड, एक बच्चे को अगर आपने अच्छे काम के लिए पॉजिटिव रीइंफोर्स किया है तो उसके जो प्रोसीजर या जो टास्क उसका ऑफ टास्क था उसको हटाने के लिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ना करके, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ना देके पॉजिटिवली उसको बताइए बेटा अगर उस काम को भी आप ऐसे अच्छा करोगे तो देन और भी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा.
which means the combination of both the positive consequences and the negative consequences. और दोनों में किसी एक का पर्टिकुलर यूज करते रहना, इट इज हार्मफुल. एवरी टाइम आप अच्छा काम करोगे, होमवर्क टाइम पे करोगे तो चॉकलेट मिलेगी. पेरेंट्स जनरली डू दिस थिंग, विच मीन्स चॉकलेट मिलेगी तो बच्चा काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. दिस मे डेवलप इनटू ए वेरी डेंजरस हैबिट लेटर ऑन. चलिए आगे चलते हैं. हाउ टू यूज पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज. देखिए मैं बताऊं आपको कि आपकी पर्सनालिटी में भी कुछ ऐसे, काफी ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर आप अच्छे से करेंगे तो देयर विल बी एप्रिसिएशन. कुछ अच्छे कह रहा हूं, लेकिन जनरली होता क्या है कि जो आपका अच्छा बिहेवियर होता है वो लोग जल्दी भूल जाते हैं, बिकॉज दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अ गुड सिटीजन. जहां थोड़ा सा आपने बच्चे को बोला कि बेटा अपनी खाने की टेबल, पढ़ाई के बाद अपनी पढ़ने की टेबल को क्लियर करके रखो, बुक्स एक तरफ, कॉपीज एक तरफ, रात को बैग लगा के सो, जूते पॉलिश करके, सॉक्स उसके साथ, अपनी यूनिफॉर्म देखो, टाई देखो, बेल्ट देखो, वाटर बॉटल देखो. If you keep on continuously telling the child to routinely keep on repeating the same procedure at the end of the day to be prepared for the next day, then this will be a good behavior which you will be developing. This will develop into habit. Automatically हो जाएगा. Now here are few examples that talking to your kids, playing with them, acknowledging them that they can encourage them to keep up the good work. Positive attention. Praise. जैसे यार आज तो तुम बड़े स्मार्ट लग रहे हो, आप ऐसे भी बोल देंगे ना तो बच्चा एक बार अपनी शर्ट को ठीक जरूर करेगा. आज तो आपका हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है. यस मैम, यस मैम, थैंक यू मैम. दीज आर ऑल टेंजिबल रिवॉर्ड्स. लेकिन प्रिविलेज अगर आप किसी की विड्रॉ करें तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस में ये भी देख लें कि उसके पास ऑल्टरनेट ना हो. आपने बोल दिया होमवर्क जब तक नहीं करोगे टीवी वॉच नहीं करोगे, लेट देम केयर फॉर दैट, क्योंकि उनके पास तो लैपटॉप है. सो कॉन्सिक्वेंसेस मस्ट ऑल्सो बी वेरी लॉजिकली सेट. जैसे आपने, मैंने अभी बता दिया था, टेकिंग टीवी won't be effective consequences, क्योंकि अगर उनके पास मोबाइल है या लैपटॉप है तो they will see online. Here are some logical examples. Logical consequences are directly related to the misbehavior. अगर कोई पुअर चॉइस करता है बाइसिकल के साथ तो टेक अवे देयर बाइक, दैट इज लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस. लेकिन इग्नोर अगर आप करेंगे देन दैट विल बी causing more damage to the child's behavior. बच्चा जमीन पे लेट जाता है, मेरे को तो चॉकलेट चाहिए, अभी चाहिए. Try to ignore. That will be withdrawing attention, may be the best negative consequence at that time. और खास तौर से मेहमान के समय, मेहमान आएंगे तब बहुत जरूरी होता है ये उनका. टाइम आउट. टाइम आउट इन द सेंस कि बेटा अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में ही आ रहा है, लास्ट स्लाइड है. आपने अगर कल होमवर्क नहीं किया तो आप मेरे साथ बैठ के लंच में और स्टाफ रूम में बैठ के हम करेंगे. तो उसने भी सोचा कि अंजलि मैडम है, प्यार से बोलती हैं, नाजुक हैं, नहीं करेंगी ऐसा, इसलिए वो इग्नोर कर देता है ये एडवाइस कि मेरे को स्टाफ रूम में मैडम अपने साथ बिठाएंगी. यू डोंट इग्नोर दैट, टेक देम अप कि बेटा आज तो आपने होमवर्क नहीं किया, कम विल मी. वो आपके सामने थोड़े से टेंट्रम्स करेगा, मैडम प्लीज मैं कल करके लाऊंगा, परसों करके लाऊंगा ना. आपको आज चलना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट. आप भले ही उसको 5 मिनट रोके एंड देन ठीक है, अब आपने शुरू कर दिया है तो आप इसको कल करके लेके आएंगे. और अगर कल पूरा नहीं हुआ बेटा तो कल तो पूरा लंच आपका चला गया. आई एम टेलिंग यू 7 स्टेजेस. बच्चों को सबसे प्यारी चीज क्या होती है स्कूल गोइंग किड को? फ्री टाइम. आप उसका फ्री टाइम देखिए. लंच भी आप मत करिए, क्यों? पेरेंट्स की भी तभी कभी कंप्लेंट आ जाएंगी कि जी बच्चे तो होमवर्क नहीं एक तो करके गया क्योंकि तबीयत खराब थी, और ऊपर से मैडम ने लंच भी नहीं करने दिया. आपकी जान आफत में पेरेंट टीचर्स मीटिंग में जब यही बात 4 आदमियों के सामने वो बोलेंगी पेरेंट्स, देन इट मे क्रिएट
whole lot of trouble for the parents or for the teachers, for the school staff, even for the you also as a principal. तो ये ignoring जो है, it should be very judicially used. Time out also should be judicially used. ठीक है, आपने होमवर्क नहीं किया, नो प्रॉब्लम, कल करके आएंगे तो ठीक, नहीं आएंगे तो मेरे साथ हैंड राइटिंग के लिए दे देंगे. अब हमारे टाइम में तो 10-10 होती थी, 10-10 लाइनें, एक एक पेज लिख के, 2-2 पेज लिख के हैंड राइटिंग सुधारने के लिए. आज आप किसी बच्चे को बोल दीजिए कि आई एम ए गुड बॉय, ये 10 बार लिख के लाओ, पेरेंट्स अगले ही दिन आपको कचहरी में बुला लेंगे, सर ये तो मेंटल हेरेसमेंट है. Those parents are also spoiling their own kids without knowing कि what exact damage they are causing to their own kids. हमारे टाइम में पेरेंट्स को कभी नहीं बुलाया जाता था, वो अपने आप ही मालिश वालिश करके टीचर बिल्कुल चमका के रखते थे बच्चे को. बताइए डॉक्टर साहब, अगर ऐसा आपके साथ हुआ हो तो. विजय नंदन जी भी हैं, अंजलि जी भी हैं. लड़कियों को खास तौर से अगर 2 चोटी नहीं होती थी तो मैडम अपनी पर्स में से रिबन निकाल के उसकी चोटी में एक लाल लाल कलर का रिबन डालती थी. यस, विजय नंदन जी कुछ बोलना चाहते हैं. हाँ सही है सर, यू आर ट्रू. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे साथ ऐसा होता था. पेरेंट्स को तो बस पेरेंट टीचर्स मीटिंग पे भी वो इस वजह से शायद थोड़ा सा शर्माते हुए जाते थे कि नंबर कम होंगे तो होंगे, अदरवाइज दे नेवर यूज्ड टू गो. चलिए अब हम आते हैं अपने मेन टास्क पर. फॉर नेक्स्ट 4 मिनट्स वी विल डिस्कस दिस थिंग. दिस इज अ वार्निंग कार्ड. जो आपने रूल बुक बनाई है उसी के लास्ट में ये कॉन्सिक्वेंसेस का कार्ड हम बना के रखते थे. फर्स्ट इज जनरल रिमाइंडर. बेटा आज आपने होमवर्क नहीं किया, वेरी बैड, अच्छी बात तो नहीं है, यू आर ए गुड बॉय, कल करके लाओगे. यस मैम. ठीक है, वेरी गुड, चलो जाओ करके लाना बेटा जरूर. और हो सके तो जाने के टाइम में भी कभी उस बच्चे को एक बार मिलिए और उसको बता दीजिए बेटा कल होमवर्क करके लाना है आपको. यस मैम, मैं जरूर करके लाऊंगा, पहले ही रिमाइंडर में. बट ऐसा है ना कि सब लोग एक रिमाइंडर में नहीं होते. तो सेकंड वन इज इंडिविजुअल डिटेंशन. वो इंडिविजुअल डिटेंशन क्या, उसको लंच में ना बुलाएं, अपने फ्री टाइम में बुलाएं. आर्ट्स के पीरियड होता है, आर्ट्स की टीचर से रिक्वेस्ट कर ले, मैडम 5 मिनट के लिए इस बच्चे को मैंने डिटेन करना है फॉर डूइंग द होमवर्क, फॉर इम्प्रूविंग द हैंड राइटिंग. फर्स्ट डिटेंशन शुड बी वेरी शॉर्ट. अगर फिर भी वो नहीं करता है, then second detention which should be a little bit younger. Longer means it should not be of whole duration. लंच पूरा मेरे साथ नहीं, 10 मिनट रखिए, कर दीजिए. और उतने में के बाद भी वार्निंग जरूर कि बेटा अगली बार अगर आपने नहीं किया then certainly you will be detained for a longer time. Time out. हमारे यहाँ I was working in St. Paul's, I told you, वहां पे होता था एक सिस्टम होता था गेटिंग. अगर रात को 9 बजे के बाद, क्योंकि सवेरे 5 बजे से पहले बेड छोड़ देना पड़ता था, बेड बनाना पड़ता था, और पेस्ट वेस्ट करके फ्रेश होके 5:15 छोटी घंटी होती थी, तो वी हैव टू बी इन द प्लेइंग फील्ड फॉर स्मॉल ग्लास ऑफ मिल्क. उसके बाद पीटी वगैरह होती थी, दौड़ भाग होती थी, वो टाइम आउट कर देते थे. अब कुछ बच्चे ऐसे शैतान होते हैं कि मेरे को तो एक्सरसाइज करने में मजे भी नहीं आते. कुछ पढ़े लिखे वाले, पढ़ने लिखने वाले इंक्लाइंड होते हैं बच्चे, वो कहते हैं कि जी मेरे को गेम्स के पीरियड में मजे नहीं आते, मैं पढ़ाई लिखाई करूंगा. तो जानबूझ के कुछ काम ऐसा करेंगे कि उनको टाइम आउट हो जाए. आउट ऑफ क्लासरूम मीन्स नॉट आउटसाइड द क्लासरूम. गेम्स के पीरियड में आ जाओ, आप मेरे साथ बैठो. आर्ट्स के पीरियड में आ जाओ. लाइब्रेरी के पीरियड में लाइब्रेरी मैडम को बोल दिया कि मैडम ये आउट ऑफ क्लास में 4th डिटेंशन है, इसकी 4th कॉन्सिक्वेंस है 4th लेवल का, सो ही हैज टू बी विद यू डूइंग हिज होमवर्क. उसके बाद आता है हमारा सबसे बढ़िया वाला, दैट इज लंच डिटेंशन. और लंच डिटेंशन में उसको खाना से वंचित नहीं करना है. ही हैज टू बी गिवन फूड बट अंडर योर कंट्रोल. पहले खाना खा ले बेटा, फिर उसके बाद होमवर्क करेंगे. उसके बाद 6th लेवल में आता है पेरेंटल कॉन्टैक्ट. दैट मीन्स
कि सर this is certainly misbehavior to such an extent कि we have no other option except to call you. बुलिंग का केसेस ऐसे 6th लेवल तक चले जाते हैं. उसके बाद आता है पेरेंटल कॉन्टैक्ट के बाद भी टाइम आउट, दैट इज इन द क्लास. इन द क्लास मींस आप पूरे दिन क्लास में बैठेंगे. अगर आपने वॉशरूम जाना है, पानी पीने के लिए जाना है, देयर विल बी समबडी, जिससे जैसे हमने बोला था कि वॉशरूम ऑफिसर है, वो जाएगा आपके साथ पानी पिला के वापस, वॉशरूम जाके वापस. एवरी टाइम यू विल बी अंडर मॉनिटरिंग आइज. दैट इज टाइम आउट इन क्लास. एंड देन अगर फिर भी नहीं हो पाता है, हालांकि मैं समझता हूं कि 5th और 6th लेवल तक कोई पहुंचेगा नहीं बच्चा, लेकिन बुली करने वाले जो बच्चे होते हैं, जैसे स्कूल के आसपास के जो बच्चे होते हैं रहने वाले, दे फील देमसेल्व्स टू बी अ लिटिल बिट दादा टाइप, कि मेरा तो एरिया है ये, मैं तो फट से किसी को बुला लूंगा. सच टाइप ऑफ केसेस हैव टू बी ऑफिशियल रेफरल, मींस प्रिंसिपल के पास रिपोर्ट विद. लेकिन ये होगा कब? तब जब आपने, अंजलि मैडम ने बताया था कि हम लोग बनाते हैं. मैडम हर बच्चे का क्या होता है आपके पास? एक पोर्टफोलियो. जैसे मैंने रजिस्टर बताया था आपको, उस रजिस्टर में आप लिखते रहेंगे. सो दिस विल बी गोइंग फॉर द ऑफिशियल रेफरल. देन ओनली दैट विल बी कंसीडर्ड, यस इट इज डन. अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है क्वेश्चन आंसर के लिए. कुछ भी है आपको तो फट से खोल के बता सकते हैं. 1 मिनट बचा है. कोई भी प्रॉब्लम होगी आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तब भी ग्रुप में डाल सकते हैं. नेक्स्ट विल बी आवर 17 to 20 slides which will be consisting of dealing with misbehavior. मैडम ये आपका लिए स्पेसिफिकली इसको ऐड किया है मैंने. मिसबिहेवियर बहुत तरीके के होंगे, बट यू विल नेवर बी एबल टू कंट्रोल ऑल ऑफ देम, डिफाइन भी नहीं कर पाएंगे. सो इट विल बी बेटर इफ वी हैव स्पेसिफिक सेशन फॉर दिस. यही लिंक रहेगा, यही पासवर्ड रहेगा. डेट, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ग्रुप में आके एक बार नोटिफिकेशन जरूर देखते रहा करें.